Hello everyone. So let us discuss another important topic in technical analysis, that is Dow theory and Elliott wave theory. Again, these theories are very important in technical analysis in practical world also and from examination point of view also, because you can expect a full-fledged question on these two theories. So let us discuss it one by one. So the first which comes is Dow theory. See, Dow theory was propounded by Charles Dow. He is considered to be the grandfather of technical analysis because he is the one who have listed the base for technical analysis. According to this theory, जो ये स्टॉक मार्केट होती है ये रैंडम बेसिस पर मूव नहीं करती. इट मींस देयर आर सेट स्टैंडर्ड्स और सेट ट्रेंड्स which can detect the movement of the market or direction of the market. तो बेसिकली अब ये ट्रेंड बुलिश आएगा बेरिश आएगा तो इट यू कैन प्रिडिक्ट दैट ट्रेंड. सो दैट इज नोन एज डाउ थ्योरी. तो डाउ थ्योरी basically helps in identifying that the stock market does not move on random basis, rather it follow a set trends or set pattern which can detect or which can identify the direction of the market. इसके अंदर हमारे तीन ट्रेंड होते हैं: प्राइमरी ट्रेंड, intermediate trend and minor trend. So we'll discuss one by one. So see, Dow theory was propounded by Charles Dow, the grandfather of technical analysis. It is based on the assumption that stock market does not move on a random basis. Rather, there are set trends which can detect the direction of the market movement. According to this theory, in any type of the market, whether bullish or bearish, three trends are simultaneously at work: primary trend, intermediate trend and minor trend. तो जो मैंने अभी आपको बताया. So let us discuss with the help of a diagram. See, primary trend. अब now you can see I have given in this diagram this line. This line is showing the upward trend because it is going upward. So primary trend is a trend which is for long term. Long term means more than 1 year. अगर प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड शो कर रहा है, इट मींस दैट द मार्केट इज बुलिश. मार्केट इज बुलिश. दिस लाइन इज प्राइमरी ट्रेंड. और ये जो आप डेली मूवमेंट देखते हो छोटी मोटी ऊपर ऊपर चल रही है, तो देखिए अभी अपवर्ड ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है, तो सेकेंडरी ट्रेंड इसका अपोजिट होगा. अपोजिट मतलब अभी देखिए ये यहां से इंक्रीज कर रही है ये वेव, और यहाँ ये फॉल कर रही है. तो जहां ये फॉल कर रही है ना, ये हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है, ये वाला पार्ट. फिर अगेन ये इंक्रीज कर रही है, फिर ये फॉल कर रही है. तो जहां पर ये अपोजिट मूव करेगी, अपोजिट इन द सेंस लाइक ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है. ठीक है, जो डाउनवर्ड कौन कौन सी है यहाँ पे, दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड. तो ये सारा कौन सा है, सेकेंडरी ट्रेंड. सेकेंडरी ट्रेंड इज अ ट्रेंड विच में लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स. अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर 2 मंथ्स में स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप पूरे ईयर का कंपैरिजन करोगे तो स्टॉक मार्केट अपवर्ड रहा, बुलिश रहा. तो primary trend is basically for long term where we are talking about more than a year, and secondary trend may last for few months. ठीक है. और secondary trend जो होता है या जिसको आप intermediate trend बोलते हो, वो जनरली क्या होता है, अपोजिट होता है प्राइमरी ट्रेंड के. और ये जो माइनर ट्रेंड होता है, ये जो छोटी छोटी आपको डेली मूवमेंट दिख रही है, माइनर मूवमेंट्स, तो ये हमारा माइनर ट्रेंड होता है. बट इसके अंदर मेन क्या है, प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड. ये हमारा बुलिश है. अभी इसी तरीके से बियरिश भी आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट अस रीड आउट दिस फर्स्ट. द प्राइमरी ट्रेंड इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ओवर अ पीरियड lasting for more than 1 year. This trend sets the overall direction of the market. If primary trend is upward, the market is said to be in bull phase, whereas if it is downward, the market is said to be in bear phase. अब आप देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है. तो लेकिन ओवरऑल पूरे साल का मैं डायरेक्शन देखूं तो मार्केट क्या है, अपवर्ड. अब ये देखिए 5 जनवरी 2023 टू 1/2/2024, 1 ईयर का, 1 ईयर में आपने देखा ये अपवर्ड जा रहा है. तो ये प्राइमरी ट्रेंड है जो ओवरऑल डायरेक्शन बताता है. इंटरमीडिएट ट्रेंड और जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड भी बोलते हैं. द इंटरमीडिएट ट्रेंड लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड ऑपरेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड. तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, जहां वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है. तो ये सारे हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी ट्रेंड. इट रिप्रेजेंट सेकेंडरी करेक्शंस इन द मार्केट. इफ द प्राइमरी ट्रेंड इज अपवर्ड, द इंटरमीडिएट ट्रेंड वुड बी डाउनवर्ड और वाइस वर्सा. ठीक है. तो जनरली जब मार्केट एक फेज शो करता है और उसके बीच में करेक्शंस आती हैं, फॉल आता है,
या मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रही है फिर इंक्रीज हो रही है, बियरिश ट्रेंड है, तो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी ट्रेंड उसके आप कह सकते हो अपोजिट मूव करती है। और ये जो आपको शॉर्ट 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 फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं आपको, ये ऐसे ये माइनर ट्रेंड है हमारी। तो सी माइनर ट्रेंड, ये देखिए माइनर ट्रेंड, शॉर्ट मूवमेंट्स आपको दिख रही हैं। द माइनर और टर्शरी ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट which do not last for long or which do not last long and do not provide any meaningful conclusions because the daily movements है which keeps on changing regarding the overall market movement। तो टर्शरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड हमें कुछ नहीं बताता। हाँ, अगर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं डाउनवर्ड्स का तो वो सेकेंडरी ट्रेंड हो जाएगा, लेकिन माइनर ट्रेंड जनरली इतने कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन हमें नहीं देता बिकॉज ये डेली मूवमेंट्स है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। So primary trend is for long more than 1 year. Secondary trend is for few months. Secondary trend is opposite of primary trend. Now let us see in bearish phase. I have given you this in bearish phase. Now you can see अभी तक आपने ऊपर वाले डायग्राम में चेक किया, sorry, that this is going upward. Similarly, if it is going downward, downward means bearish. तो ये देखिए लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड है, इट इज डाउनवर्ड। लेकिन अब यहाँ पर चेक कीजिए, ये डाउन हो रहा है, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप। आप देख रहे हैं ये अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है, तो ये कौन सा ट्रेंड है? सेकेंडरी ट्रेंड। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड है लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड इसका क्या होता है? अपोजिट। मतलब पूरे साल मार्केट का जो मतलब एक तरह से आप डायरेक्शन कह रहे हो वो डाउनवर्ड था, लेकिन बीच बीच में करेक्शन आए। करेक्शन मतलब बीच बीच में मार्केट ने फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स के लिए क्या हुआ, मार्केट अप हुआ। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ये डाउनवर्ड था, इट इज गोइंग अपवर्ड, तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड होगा? सेकेंडरी ट्रेंड। तो सेकेंडरी ट्रेंड हमेशा अपोजिट होगा। अब देखिए प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? हमारा सेकेंडरी ट्रेंड। और ये जो आपकी छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं, ये हमारी कौन सी हुई? माइनर ट्रेंड और टर्शरी ट्रेंड। तो डाउ थ्योरी बेसिकली हमारे को बुलिश फेज में भी हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई एंड इन दिस bearish phase also. So this is about Dow theory. So next we are discussing with Elliott wave theory. I hope यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। Now Elliott wave theory you can say is an extension of Dow theory, और Dow theory इसको हेल्प करता है Elliott wave theory को। Again Elliott wave theory is quite important because थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल लर्न करेंगे। So let us read out first and then we'll understand. Elliott wave theory was developed by Ralph Nelson Elliott and explained the stock price move in repetitive wave-like patterns. These patterns are formed due to changes in investors' emotions such as optimism and pessimism. Optimism means when he is hopeful the market would be in bullish phase. Pessimism means when he is of the state of mind the market bearish है, fall करेगा. As human behavior remains consistent over the time, these wave patterns tend to repeat. The theory explains investors identify market cycles and predict future price movements by analyzing these recurring waves. तो वो कह रहा है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है ना वो कंसिस्टेंटली रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो कहता है लॉन्ग टर्म में दोबारा वो पैटर्न रिपीट होता है। बिकॉज मार्केट का रूल यही है कि बिकॉज ह्यूमंस आर बिहेविंग इन अ कंसिस्टेंट वे। तो वो कैसे करेंगे अभी देखिए आप इसमें। तो सी अभी मैं इसका डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। एलियट वेव पैटर्न, according to Elliott wave theory, stock prices moved in a structured and repeated cycle of waves. The pattern consists of 5 waves moving in the direction of main trend, जिसको हम impulse wave बोलते हैं, 3 waves moving against the trend, जिसको हम corrective waves बोलते हैं। This creates a complete 8 wave cycle, that is 5:3 pattern। 5 कौन सी है? Moving in the main trend, and 3 कौन सी है? जो corrections है opposite, that repeats over time in financial market. Understanding these patterns help investor identify whether the market is in a growth phase or correction phase. तो अभी देखिए डायग्राम से हम इसको समझते हैं। Now you can see this is the diagram. Now you can see here that wave 1 is going up, down, up, down, up. आप देख रहे हैं ये यहां से शुरू हुआ था स्टॉक प्राइस, फर्स्ट वेव के सबसे बॉटम से। ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ।
तो यहां से यहां तक आप देख रहे हो मार्केट का जो मेन मूवमेंट है वो अपवर्ड है। इट मीन्स आप कहेंगे अपवर्ड कैसे है भाई, वेव वन में इंक्रीज हुआ, फिर वो वेव टू गिर रहा है, लेकिन गिरने के बाद भी वो वेव वन के बॉटम पे नहीं आया, उससे ऊपर ही है। लेट्स से ये बॉटम प्राइस में 5 रुपीज बोल रहा था, ये इंक्रीज होकर 20 रुपीज पहुंच गया, लेकिन मैं कहता हूँ 10 रुपीज पे फिर आ गया, लेकिन 5 रुपीज से तो ऊपर है ना 10 रुपीज, तो मतलब अभी भी मार्केट अप ही है, जो हमारी नॉर्मल वेव थी। फिर आप कहते हो कि फिर दोबारा इंक्रीज हुआ, फिर ये दोबारा लेट से मैं कहता हूँ 30 पे आ गया, 30 पे आने के बाद अब ये गिरते गिरते लेट से 20 पे आ गया। तो अब देख रहे हो इस केस में कि पहले जो हमारा बॉटम था वो 2 पे बन रहा था, अब हमारा बॉटम कहाँ बन रहा है 4 पे। तो अब देखते हो 2 से ऊपर कितना है, 4 बहुत ऊपर है। तो इट मीन्स अगेन अगर हम पूरी मार्केट का रुझान देखें तो अभी भी क्या है, ये अपवर्ड है, मार्केट इज ऑन अपवर्ड स्टेज। एंड सिमिलरली फॉर फिफ्थ वेव इट इज गोइंग अप। अब यहां से अब चेक कीजिए फिफ्थ वेव के बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग, गिरती जा रही है मार्केट। तो जब भी मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड होगा, इंक्रीज होगा, तो वो होगी इंपल्सिव मूव और इंपल्सिव वेव। और जब भी मार्केट फॉल करेगा, ये हम थ्री वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। अभी हम देखिए कैसे करते हैं इसमें। देखिए अभी मैंने आपको बताया वेव टू विल नेवर गो बिलो वेव वन, क्योंकि मैंने बोला ओवरऑल ट्रेंड हमारा अपवर्ड है, तो दिस इज अपवर्ड। ठीक है, और आप देख रहे हो वेव थ्री सबसे बड़ी जंप लगा रही है, वन तो ऊपर था, टू नीचे आया, फिर वेव थ्री देखिए सबसे बड़ी लाइन है इसमें। तो आप यहाँ देखिए लिखा वेव थ्री विल बी द बिगर वेव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड, ये अपवर्ड ट्रेंड है राइट नाउ। तो ये मतलब वेव थ्री वुड बी हमेशा इट वुड बी बिगर वेव। वेव फोर विल ऑलवेज बी अबव वेव वन एरिया। तो देखिए अब ये वेव वन एरिया है, मैंने बोला टू से फोर भी बड़ा है, लेकिन अब देखिए वेव वन से भी फोर बड़ा है। इट मीन्स अगर मैंने बोला यहाँ पर ये 10 रुपीज का था, तो अब ये वेव फोर में वो 15 रुपीज पे बंद हो रहा हो। तो इट मीन्स अभी भी ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या है, अपवर्ड। भाई हमने 5 रुपीज से स्टार्ट किया था, इट रीचेस टू 20, देन केम बैक टू 10, देन मूव टू 30, देन केम बैक टू लेट्स से 25। तो अब देख रहे हो फोर जो फोर्थ वेव है वो अभी भी वन वेव से ऊपर है, तो इसका मतलब ट्रेंड अभी भी क्या है, अपवर्ड है। तो वेव फोर विल ऑलवेज बी अबव द वेव वन एरिया, तो उसे तो ऊपर है ही, ये वन से भी ऊपर होनी चाहिए। अब आप देखिए ये इंक्रीज इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, तो इनको हम बोलते हैं, इनको भी हम इंपल्सिव वेव बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ वेव वन इंपल्सिव और मोटिव वेव, वेव टू, वेव फोर, इनको ये करेक्टिव वेव बोल रहे हैं। ऑल्दो ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, बट बीच बीच में गिर रही है, तो ये कौन सी वेव हुई, करेक्टिव वेव। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ये फॉल किया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर फॉल किया, तो अगेन दीज आर करेक्टिव वेव। तो इंक्रीज हम किस कौन सी वेव से दिखा रहे हैं, 5 वेव से, 1 2 3 4 5। और डिक्रीज हम 3 वेव से दिखा रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं 8 A B एंड C। तो टोटल आप देख सकते हो 8 वेव्स बन गई हमारी यहाँ पे। तो लेट अस सी विद द डायग्राम। अब डायग्राम में भी आप ये चेक कर सकते हो, लेट्स से ये मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान लीजिए ये एक ही वेव है, तो उस वेव में भी 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल पॉइंट्स बन सकते हैं। लेट्स से मैं इसको इस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से वेव वन, तो इट इज गोइंग अप डाउन अप डाउन अप, तो इसका मतलब एक वेव में भी छोटे छोटे 5 पॉइंट्स बन सकते हैं, तो वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए रेड में दिख रहा है ना वन, तो मतलब हर इंडिविजुअल वेव भी 5 पैटर्न फॉलो कर रही है। वन, देखिए वन इंक्रीज, फिर डाउन, फिर इंक्रीज, फिर डाउन। अब देखिए जो फोर है वो वन से अभी भी ऊपर है, ठीक है, और कभी भी अब वो सेकंड के एरिया में नहीं आएगा। देन फाइव, देन अप, देन यू कैन सी इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ए बी एंड सी, तो ये सेकंड पार्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड पार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है ये एक ही वेव है, तो एक वेव भी कई बार हमें क्या शो करती है, हमें एक वेव भी आठों के आठ पैटर्न शो कर सकती है। लेट्स से इन दिस एग्जांपल दिस इज गोइंग लाइक दिस वे, 1 2 3 4 एंड 5, देन 1 2 3, तो ये फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब एक वेव भी आपको ये जो 8 पैटर्न जो हमने ऊपर स्टडी किए हैं, 5 इंक्रीमेंट और 3 डिक्रीमेंट, वो भी शो कर सकता है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअल अब देखिए 1 2 3 4 5 A B C, तो ये भी 8 पैटर्न फॉलो कर रहा है, और हर वेव में आपको अपने 8 पैटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स इन एरियल वेव थ्योरी।
These wave move in the direction of main trend. अब यहाँ पर आप देखिए मेन ट्रेंड हमारा क्या है, व्हाट इज द मेन ट्रेंड, इट इज गोइंग अप। तो जब अप है और मार्केट भी अप जा रही है तो ये इम्पल्सिव मूव होंगी। तो देखिए दीज वेव मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड एंड आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट। दे रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप, बुलिश है इन अ राइजिंग मार्केट, एंड पेसिमिज्म इन फॉलिंग मार्केट। अगर अभी फॉल करेगा, जैसे इस केस में ये फॉल कर रहा है, तो इस केस में ये भी एक तरह से क्या करेगा, पेसिमिज्म शो करेगा। करेक्टिव वेव्स, दीज वेव्स मूव अपोजिट टू द मेन ट्रेंड, जैसे हमारा वहां पर सेकेंडरी वेव था डाउ थ्योरी में, and represent temporary pauses or corrections. They are generally weaker compared to impulse waves. By identifying these waves, investor can better understand whether the market trend will continue or reverse. So, what I'm trying to say is, अब आपने देखा ये पैटर्न बन रहा है, 5 वेव्स तक पहुंच गया, फिर ये फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर आपको शो करेगा जब ये अपवर्ड ट्रेंड में है तो इट इज गुड टू बाय। लेकिन अब ये 5 वेव्स के बाद दिख रहा है ये फॉल करना शुरू हो गया, तो दैट इज करेक्टिव मोड, तो दैट इज द टाइम टू सेल। तो ये हमारे को इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव्स थी जो 5:3 का पैटर्न फॉलो करते हैं। तो 5:3 का पैटर्न आप ब्रॉडर फॉर्म में इस तरीके से कर सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया इंडिविजुअल वेव भी आपको क्या करती है, 5:3 का पैटर्न शो करती है। लेट से वेव 1 यहाँ गई, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, तो ये ऑटोमेटिकली क्या शो कर रही है, इट इज शोइंग दैट वन वेव कैन हैव ऑल द 8 साइड, 8 यू कैन से पैटर्न, ठीक है, और 8 वेव्स। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन so that you can get all notifications. Thank you so much.